You are coming under the word where the Spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं. They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send words. उन शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? Spirit and death. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के अंदर स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. कौन सी दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूँ. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the Spirit of God were released in his life. And when the Spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomachache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा. Yeah, some people who drink, for them तबीयत खराब है, if you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है, sad, drink. तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक ही दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है. God has just one medicine. मेरा वचन. बीमार हूँ, मेरा वचन. दुष्ट आत्मा है, मेरा वचन. जय में चलना है, मेरा वचन. जो भी चाहिए परमेश्वर अपना वचन भेजता है. God sends His word for you. Amen. परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है. God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है. पुड़िया. He is one. He is one such doctor gives you the same medicine. Headache, stomachache, whatever. डर लग रहा है, ये लो. Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है. Because he knows everything is in his word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है. Because he created this entire universe by his word. आपकी किडनी बनी उसके वचन से. Your kidney was आपकी formed out of आंखें बनी उसके वचन Your से. eyes were formed out of आपका his word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से. formed out of his word. आपके नर्व्स, नसें बनी उसके Your वचन nerves were से. formed from his word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया. Everything came into being by his word. Amen. Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning some. He sent his word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did he heal them? अपने वचन को भेजा. By sending his word. क्यों? Why? वही दवाई. That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया and delivered them from their destruction. He sent his word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा. ध्यान से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction.
अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा। And when I read this जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है। यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है, और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है। So it says like this in the Hebrew language, he keeps on sending his word and keeps them healed, and he keeps on saving them from destructions. Amen? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का। आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स। There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए। No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी। When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is Word वो Himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन नहीं continuously. रहे। But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent His word. और हमें क्या किया? What did He do to us? चंगा किया। Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है क्या चाहिए उन्हें? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं कर रही क्या one's चाहिए? kidney's not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? आपको वचन चाहिए। The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है। And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का और कारण। जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई। And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है। If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में। In your heart and in your mouth. Amen? Amen. So word are containers. They contain spirit, they contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है। So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए। आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है, But you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए हो। Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो। The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं। City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर।